Assalamu alaikum. I'm Naila Abdi from the platform of Reed's School and College. Exactly 1 week into the Eid al-Adha, we did not meet last week. I missed you people. I hope you missed me as well. Today, we are talking about something that seems to be in every business, and that is marketing. We think about marketing as something जो business उसके बगैर कोई institute उसके बगैर कामयाब नहीं होता. With me today is Umair Saeed, a marketing expert, a teacher, a man who looks at digital, traditional, all sorts of marketing. We will ask Umair to tell us something about himself. But before we do that, I want you to start thinking, what exactly is marketing? Is it a profession that you would want to take? Is it a profession that you would like your children to take up? Because it is something that we can't do without. हम बहुत अरसे से हर चीज के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग सी मार्केटिंग देखते हैं. पेप्सी और कोक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन लड़ते बड़े मजे से हैं और सारी कहानी मार्केटिंग की होती है. सोचना पड़ जाता है कि एक ही सी शक्ल, एक ही सी साइज की दो ड्रिंक्स को पिए तो कौन सी वाली को पिए, और आपस में लोग लड़ते भी हैं. चाय और कॉफी पे भी लड़ाई होती है. सो उमेर से पूछते हैं आखिर मार्केटिंग क्या है, लेकिन इससे पहले कि हम उमेर से पूछें कि मार्केटिंग क्या है, thank you so much Umair for being with us today. Before we start the session and talk about why marketing, what is marketing, and do we need marketing, can you tell us something about yourself? So, assalamu alaikum to everyone listening and to you. Bahut shukriya for having me here. Generally, when you said I am a teacher, I tend to engage with graduates and postgraduates at business institutions where I teach consumer behavior, advertising planning and strategy, strategic marketing, and other relevant courses that fall under my area of expertise. But I do have a full-time day job as a chief operating officer at one of Pakistan's leading full-service advertising agencies, which means I get to work on more brands and more with more companies than usually people working inside a company that makes or markets something get to. This basically working in advertising gives you an opportunity to work across a variety of categories as you're a service provider to them in helping them translate their business and organizational objectives into marketing and communication objectives, and then fulfilling or working on those objectives to achieve their business goals, which means making ads, at times making, even the logo types like the Coke logo that you see or so on and so forth. It also means at times understanding how, where, when, and on what or through what medium should we, the brands and the marketing people, communicate their messages, their sponsored communication towards people who consume their products and services. So should we go on TV? What time on TV? What kind of ad on TV? What channel within that time on TV? So on and so forth. That is an area specialized as media buying and planning. It is a very research-driven area. But on the face of it, if you want to take a single line to explain or define who I am within the industry, I'm eternally a student of marketing, because that is the way you continue learning and growing. And that is exactly how I approach every opportunity to engage with those who know or want to know more about marketing. Thank you so much, Umair, for telling us about yourself. So, Umair, you just said that marketing is a whole research-based area. You just can't one day go out and say, "Aaj humne ye cheez market kar deni hai." So, if you can let the audience and me know exactly why is marketing so important in all areas of our life. So, to answer that, first let's establish a very simple basic definition of marketing. Marketing is not just communication. It's not just communication. A lot of it is communication. लेकिन आमतौर पे जब हम मार्केटिंग सोचते हैं तो हम सोचते हैं शायद सिर्फ इश्तेहार या शायद सिर्फ चीज को बेचने का अमल. But marketing is the entire process of starting with understanding or predicting the need of the consumer,
जिसके लिए आपको प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, मेकिंग द राइट प्रोडक्ट आफ्टर इवेल्युएटिंग के उस नीड को फुलफिल करने के लिए और कौन से ऑल्टरनेट्स या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, and then positioning, branding, communicating that product or service so that it reaches the desired target audience and they want to pay money to avail that product or service or to utilize the value that it offers. So it's the entire process, and it starts from research and builds on research continuously throughout every step. So if classically speaking, if I tell you, the marketing is about everything from understanding consumer needs to creating products and services that fulfill those needs to differentiating your products and services from others offering similar solutions, and eventually to measuring the impact of your efforts so that you can improve every step on the way in terms of return on investment. So it's a process that goes throughout the life cycle of a business. And even if you come across companies that don't really run ads, even then they're always marketing. That's the organization part of marketing's definition. But if you take it apart and simplify, we are all always marketing. जब हम एक नए कमरे में दाखिल होते हैं जिसमें किसी और चेहरे को हम नहीं जानते, as a student, as a professional, as a teacher, for example, everything we do is part and parcel of our marketing effort. It is when we are promoting our image towards everyone who's our audience. क्यों लोग आपकी बात सुने, क्यों लोग तवज्जो दें आपकी तरफ, और क्यों आपके साथ एंगेज करें. चाहे वो एक टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप है, स्टूडेंट अपना टाइम, अपनी एफर्ट और अपना ट्रस्ट टीचर के अंदर तभी देता है जब टीचर उसको सक्सेसफुली मार्केट कर पाता है कि मेरी जरूरत है तुम्हें. एंड दैट इज द होल प्रोसेस. Very true. क्योंकि marketing is part of our life in every domain. I remember when I was brought into the admin part of education, we were told कि आपका जो image है वो बड़ा different होना चाहिए, not the same as the classroom person. So I agree with you on this point that we are always marketing. Umair, years back when I was young, और एडवर्टाइजमेंट्स टीवी पर बहुत ज्यादा कॉमन होना शुरू हो गए थे thousands of years ago, तो बड़ी एक मजे की कहानी होती थी. उसको देख के हमें एहसास होता था कि अच्छा दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट और हमें ये लेनी है. तो मेरी अम्मा बड़ा नाराज हुआ करती थी. वो हमेशा कहती थी कि ये जो टीवी है ना, इसने बड़ा खराब बुरा किया है क्योंकि ये आपको नई चीजें बताता है और बच्चे जो हैं वो हमारा बजट खराब करते हैं. हाउ मच डू यू थिंक इट इम्पैक्ट्स, आपने वर्ड इम्पैक्ट यूज किया कि मार्केटिंग डज impact our choices, our wishes, our needs. So, how much do you think the impact is there? How much positive or how much negative impact of marketing that happens of the product? I'm not talking about services, but product definitely. देखें, मेरा ख्याल में इट्स अ टूल जस्ट लाइक एनी अदर टूल अवेलेबल टू यू. आप एक बस को बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और देयर आर दोज हु यूज इट फॉर रनिंग सम टेररिस्ट एक्टिविटीज एज वेल. द टूल डजंट चेंज. हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ in some capacity offers us that choice how we use it. Marketing, and within that function people who work as marketeers, उनके ऊपर हमेशा एक responsibility होती है to uphold the highest standards, to make sure they're creating the right products and services, and to make sure that they're not just delivering value to those who are buying their products and services, बल्कि जिस geography में, जिस ecology के अंदर वो operate करते हैं, उसको भी वो नुकसान ना पहुंचाएं. जो सोसाइटल मार्केटिंग का आजकल आप बहुत सुनते हैं, या आप देखते हैं कंपनीज की तरफ लोग ड्राइव करते हैं और कहते हैं कि जी आप पोल्यूशन फ्री करें, प्लास्टिक से बचाएं, आपकी कंपनी बहुत पोल्यूट करवा रही है, आपकी कंपनी के बने प्रोडक्ट की वजह से बहुत पोल्यूशन हो रही है, बनने के प्रोसेस से बहुत पोल्यूशन हो रही है. तो इकोलॉजी का एस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है उसके अंदर. तो मार्केटिंग इन एनी वे एक मुख्तलिफ दौरों से गुजरी है जिस तरह जिंदगी गुजरती है. मैं थोड़ी देर पहले लाइव होने से पहले आपसे बात कर रहा था कि शायद दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम एक स्टैंडर्ड बेल कर्व से नहीं समझा सकते. जो एक बेल कर्व होता है जो एक्स एंड वाई एक्सिस पे इस तरह ऊपर जाता है और फिर यूं नीचे आ जाता है. इफ आई डू इट इन द स्क्रीन इट गोज अप लाइक दिस, कम्स डाउन लाइक दिस. ठीक है. ऑल ऑफ लाइफ इज लाइक दैट. वी आर बोर्न, वी आर वीक, वी स्टार्ट ग्रोइंग, वी reach our maturity, our prime strength, and then we start declining and eventually we die.
That's how it works. Similarly, all the brands and businesses that you see today have also gone through their life cycles. So marketing जब शुरू हुई, mass marketing जिसको हम कहते हैं आज, या mass communication की वजह से जो marketing की definition जानते हैं, उसने use of technology employ किया एक मैसेज को बहुत जल्दी बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए. इस अवेयरनेस से बहुत सारे बिजनेसेस ने mass production की और नई मार्केट्स तक अपने प्रोडक्ट्स ले पाए. सो फॉर एग्जांपल, जब हम बच्चे थे तो मेरे ख्याल में वैसे तो उस वक्त आपने कहा आप जब यंग थी, यंग नहीं, जब आप बच्ची थी इस तरह गिनते हैं, क्योंकि यंग तो अभी हम दोनों हैं. तो जब हम यंग थे, बच्चे थे, तो वी हैड पोल्का, रॉको और इग्लू, ये 3 आइसक्रीम के ब्रांड्स थे. इनकी लिमिटेड आइसक्रीम्स थी और यही था अवेलेबल मार्केट में जो अवेलेबल था. वॉल्स आया, उसने इनोवेट किया. वॉल्स क्यों आया पाकिस्तान? यूनिलीवर एक इंटरनेशनल कंपनी है, उसने क्या देखा पाकिस्तान के अंदर, क्यों यहाँ फैक्ट्री लगाई, यहाँ तक अपना प्रोडक्ट सब तक पहुंचाया, फिर उसमें इनोवेशन की. तो मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा, जहां आप एक नुकसान आपको ये नजर आता है कि लोग बिला जरूरत चीजें खरीदते हैं, एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि इनोवेशन होती है. क्योंकि एक ही चीज देख देख के लोग बोर हो जाते हैं, तो लोग चाहते हैं किसी नए स्टाइल में, नए शेप में, नए जायके में, नई वैल्यू के साथ उनको वो चीज ऑफर की जाए. तो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का प्रोसेस हर इंडस्ट्री में मार्केटिंग की वजह से जिंदा है, जिससे आपको बेहतर से बेहतर चीज मिलती है. राइट. उमेर, आई एग्री विद यू, इट्स एन इनोवेशन, और आपको ऑल्टरनेटिव्स भी इसमें बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, ताकि आप इसमें बहुत आसानी के साथ चॉइसेस आपके पास होती हैं. जैसे इस वक्त करंटली हमारी एक कंपनी जो एक सर्विस प्रोवाइड करती है, नाम नहीं ले रही मैं, सू कर देंगी कंपनी मुझे, लेकिन वो बेचारी जिस तरह की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करती है, तो हम सब फेसबुक पे बैठ के उसको अब्यूज कर रहे होते हैं. अगर हमारे पास चॉइस हो तो शायद वो जिंदगी हमारी आसान हो जाए. मार्केटिंग एक ऐसा टूल है जो बहुत मुश्किल से लोगों को समझ आता है कि उसको किस तरह से करना चाहिए. हमारा जो करंट स्टूडेंट है, जो अपने करियर चॉइसेस पे सोच रहा होता है, उसके पास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट कि जी मुझे मार्केटिंग के अंदर जाना है, कम्स वंस ही जॉइंस हिज यूनिवर्सिटी. इस एज से जहां वो अभी है, फॉर एग्जांपल हमारे फाइनल ईयर ओ लेवल के स्टूडेंट्स या हमारे ए लेवल A2 के स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है किस तरह से वो अपने इस करियर चॉइस को, अगर वो इस कुछ एज अ करियर देखना चाहें, तो व्हाट आर द पाथवेज दैट दे शुड टेक, व्हाट आर द थिंग्स दैट दे शुड अंडरस्टैंड अबाउट इट, कि हाँ दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. सो इसमें 2-3 मिथ बस्टिंग एक्सरसाइजेस रिक्वायर्ड हैं. टू स्टार्ट ऑफ विद, ये समझना जरूरी है कि मार्केटिंग अपने अंदर बहुत सारी और सब फील्ड्स समा के बैठा हुआ है. विद इन मार्केटिंग देयर इज अ रिसर्च की फील्ड. विद इन मार्केटिंग देयर इज न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट की कंसंट्रेशन आ जाती है. सेल्स प्लानिंग, सेल्स ऑपरेशन, सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन. मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, जिसमें एडवर्टाइजिंग, पीआर, पर्सनल सेलिंग, बिलो द लाइन एक्टिविटीज बहुत सारी जो आप एक्टिवेशंस वगैरह देखते हैं, इवेंट्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सब आ जाते हैं. और इस सब से आगे बढ़ के स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, जो बेसिकली स्ट्रैटेजी और प्लानिंग की एक सब शाख है, जिसमें स्ट्रेटेजिक फाइनेंस भी होता है, उसी तरह स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग भी होता है. ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का वो पैरामीटर होता है जहां पे आप बेसिकली लॉन्ग टर्म व्यू के साथ मार्केटिंग की एक्टिविटीज को और उसकी एफर्ट्स को देख रहे होते हैं. सो स्ट्रैटेजी, जिसकी नेचुरल इंक्लिनेशन है एज अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट या एज अ प्लानर, वो अपने आप को रेट करते हैं. दे आर एबल टू think in steps, think ahead of others, are able to break down concepts and ideas into tangible steps and are able to manipulate those steps to improve the value overall. जो strategy minded लोग होते हैं, उनके लिए एक अलग करियर है within marketing. जो बहुत अच्छे interpersonal skills रखते हैं लोग, जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग naturally salesmen होते हैं. बच्चे भी ऐसे होते हैं कि माँ बाप को भी चित कर देते हैं और साथी को भी फौरन अपनी मर्जी से मना लेते हैं. आसपास के दोस्तों यारों को भी अपनी तरफ खींच के अपनी मर्जी से डिसीजंस मंगवा लेते हैं उनसे. सो ये इन्फ्लुएंस रखने वाले, अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स रखने वाले लोगों के लिए भी एक फील्ड है. सेल्स की फील्ड में आपको बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है. आपको एक दुकानदार से लेके अपनी टीम के पीएम तक सबके साथ रेपो बना के रखनी पड़ती है. आपको अपनी कंपनी के सीईओ के सामने अपनी वर्थ बना के रखनी पड़ती है. एक बड़ा अच्छा इंटरेक्टिव उसके सेल्स का करियर बनता है. और रिसर्च,
स्पेशली मार्केटिंग रिसर्च, जहाँ पे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरह की रिसर्च में बहुत इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा रिसर्च में इसलिए होती है कि मार्केटिंग का एक एंगल मेजर एक्सपेंस होता है कंपनीज के ऑपरेशंस के अंदर। तो वो पैसे जहां खर्च कर रहे हैं वो जानना चाहते हैं वो इफेक्टिवली वहां पैसे खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में बहुत स्कोप है विद इन मार्केटिंग। सो आमतौर पे हम सुनते ही हैं लोगों से कि जो हाई ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स वाले लोग हैं वो मार्केटिंग में चले जाएं वो बच्चे, और जो हाई ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स में नहीं वो कभी मार्केटिंग का ना सोचें। जबकि मुझे ये लगता है कि प्लेंटी ऑफ हाई ऑन इंटरपर्सनल स्किल्स, मेरी तरह बकबक करने वाले लोग बहुत सारे हैं मार्केटिंग में, अच्छा सोचने वाले लोगों की बहुत जरूरत है। सो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट्स जो बच्चे अपने आप को समझते हैं उन दोनों के लिए रोल्स है मार्केटिंग में। रिसर्च इज परहैप्स अ मोर इंट्रोवर्ट ड्रिवन कोर एबिलिटी और एरिया विद इन मार्केटिंग, और जरा एक्सट्रोवर्ट किस्म के लोग सेल्स और कम्युनिकेशन में ज्यादा नजर आएंगे आपको। लेकिन दोनों तरफ देयर इज एम्पल रूम टू एक्सप्लोर करियर ऑप्शंस। क्यों और क्यों ना कंसिडर करें मार्केटिंग को? I think part of it is to do with a career choice कि आप marketing as a career choose करें। Are you still there? अच्छा, आपकी वीडियो हैंग हो गई थी अभी, तो I was under the impression that either me or you are going through some sort of, I think, are you back? Are we back? Okay, okay. I think I lost you somewhere. We got lost for around 5 seconds. Five. Okay. I'll So repeat I कि मैं खत्म करता हूँ बात को। मैं कह ये रहा था कि विद इन मार्केटिंग आपके पास इस वक्त जो 4 शाखें मैंने आपको बताई उनमें रोल्स हैं, इंट्रोवर्ट्स एक्सट्रोवर्ट्स दोनों के लिए रोल्स हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली आपको डिसाइड ये करना है कि मार्केटिंग आपने सीखनी क्यों है। क्योंकि मैं आपको ये चॉइस नहीं दे रहा कि आपने मार्केटिंग सीखनी है या नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ आपने ये डिसाइड करना है आपने मार्केटिंग सीखनी क्यों है। क्योंकि आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, यू आर ऑलवेज मार्केटिंग। मार्केटिंग में जो ब्रांड मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है या ब्रांड का कॉन्सेप्ट है, वो ब्रांड एक इंसान भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप खुद, या एट अ लार्जर स्केल समबडी लाइक उमैर जालियावाला जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है, इवन लार्जर स्केल समबडी लाइक वसीम अकरम जो एक इंटरनेशनल एथलीट है, राइट? और इमरान खान या डोनाल्ड ट्रंप जो एथलीट तो थे इमरान, लेकिन इस वक्त इमरान इज नोन एज अ हेड ऑफ द स्टेट, और एक पॉलिटिकल कैंपेन में इमरान खान के ब्रांड को वोट डाला। सो एक इंडिविजुअल भी ब्रांड बन सकता है, एक आइडिया, ग्रीन पीस, एनिमल राइट्स, एन आइडिया इज ऑल्सो अ ब्रांड। रेशियल इक्वालिटी की जो ड्राइव चल रही है इस वक्त दुनिया में पोस्ट व्हाट हैपेंड इन अमेरिका, दैट इज एन आइडिया व्हिच हैज बिकम अ ब्रांड। ऑल लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर। Or it can be a product or service. A service like, for example, TCS is a brand. A product like the Pelican pen or pencil that you use is a brand. So all 4 of these are a brand. Now, इसमें जो पहले दो मैंने बात की है, an idea or a person. So you and I as individuals need to market ourselves. When we market ourselves, we basically use communication and personal development to improve our image in the mind of everyone who engages with us, ताकि वो हमारी बात पे तवज्जो दें, हमारे आइडिया को वर्दी समझें, और साथ साथ हमें और हमसे मुंसलिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को या हमारे रोल को इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट वी आर परफॉर्मिंग अप्रिशिएट करें। सो अच्छा काम करना काफी नहीं है आजकल, उस काम के बारे में चर्चा करना भी बहुत बहुत जरूरी है। वो एक जमाना था ना जब हम चर्चा करने को कहते थे कि जी ब्रैग कर रहे हैं या सेल्फ अक्लेमेशन चल रही है, लेकिन अब वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई है। अब हमें बताना जरूरी है कि हमने ये काम किया है और ये दुनिया को देख लेना चाहिए। 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये है कि थोड़ा सा कल्चर इस तरफ गया है कि हम सबको अपना जरा बढ़ा चढ़ा के बताने की आदत हो गई है। दूसरी वजह ये है कि इंफॉर्मेशन एज का एक, जिस एज में हम हर इंडस्ट्रियल एज थी ना, जिस जमाने में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रही थी और इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा इनोवेशन हुई थी, उस तरह हमारे इस दौर में, इसे इंफॉर्मेशन एज का तकरीबन अख्ताम कहते हैं, इसमें डेटा की और इंफॉर्मेशन की भरमार है। एक्सेस इज नॉट अ प्रॉब्लम। इनफैक्ट इतनी इंट्रूसिव बम्बार्डमेंट है इंफॉर्मेशन की हमारे ऊपर कि हम बहुत आसानी से उस क्लटर के अंदर भूल जाते हैं अच्छी और इंपॉर्टेंट बातें। तो अपने बारे में दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सिर्फ अच्छा काम करना काफी नहीं बचा।
उसकी डॉक्यूमेंटेशन करना और उसकी प्रोजेक्शन करना उसके इम्पैक्ट की भी जरूरी है। और ये कर रहे हैं हम, एक्टिवली सब कर रहे हैं। जिस दिन हमें अपने घर में अब्बू से गाड़ी की चाबी चाहिए होती है, उस दिन हम 3-4 काम करके जता भी रहे होते हैं उन्हें कि अब्बू देखिए मैंने आज ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। अच्छी बातें करते हैं पहले, इससे पहले कि उनसे कोई डिमांड की जाए। वी सही बात नो है। द ऑडियंस, वी अंडरस्टैंड हाउ ही थिंक्स, हमें पता है उनकी नीड स्टेट क्या है। हम उस हिसाब से अपने स्टेप्स, अपने अल्फाज, अपने एक्सप्रेशंस सब इस्तेमाल करके अपनी मर्जी का रिजल्ट उनसे लेते हैं। सो वी आर बेसिकली मार्केटिंग इन द प्रोसेस। तो उमेर, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही कि मार्केटिंग में इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स दोनों के लिए बहुत गुंजाइश है, बिकॉज जो इसके 4 सब एरियाज हैं वो इंट्रोवर्ट्स भी, रिसर्च बेस्ड काम एक इंट्रोवर्ट बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमें लगता है बज़ाहिर, जैसे आप और मैं, हमें बोलने का शौक है और हमें बड़ा शौक है लोग हमें सुने, मुझे तो बड़ा शौक है लोग मुझे सुने। दैट डजंट ऑटोमेटिकली मेक मी अ गुड रिसर्चर. But a bacha who likes to keep to himself, who likes to do things himself, अपने लेवल पे जाके वो रिसर्च की स्किल को, मैंने जो चीज एज अ टीचर नोट किया है वो ये किया कि हमारी बच्चों की नेचर में से रिसर्च खत्म होती जा रही है, हालांकि रिसर्च के टूल्स इजी हो गए हैं। हाउ डू वी इनकलकेट दैट रिसर्च टूल इन द किड्स, ताकि वो आगे चलकर अगर वो मार्केटिंग में जाना चाहते हैं, किसी भी XYZ डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो रिसर्च तो बेसिक उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाउ डू वी डू दैट, हाउ डू वी मेक देम टेक इंटरेस्ट इन रिसर्च? सो एक तो ये कि हम में से कोई भी एब्सोल्युटली इंट्रोवर्ट और एब्सोल्युटली एक्सट्रोवर्ट नहीं होता। बिल्कुल। वी आर नॉट द पर्सन वी आर एट स्कूल compared to the person we are at home. We're not the same person. ठीक है? हम अपने बेहतरीन दोस्त के साथ कैसे हैं, हम अपने घर वालों के साथ कैसे हैं, हम कॉलेज स्कूल में कैसे हैं, कहीं इंटर्नशिप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां पे कैसे हैं। We have different masks, different faces. As Shakespeare said, all the world is but a stage, and all men and women merely players. ये वो वाले प्लेयर्स नहीं हैं जो बहुत ज्यादा इश्क लड़ाते हैं, ये वो वाले प्लेयर्स हैं जो स्टेज पे प्ले एक्ट कर रहे होते हैं। तो एक्टर का लफ्ज प्ले है यहाँ पे बच्चों के लिए। मैंने कहा बताऊं, दो चीजें हैं। बच्चे रिसर्च से क्यों नालायक हैं, क्यों रिसर्च अवॉइड करते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि इस वक्त हमारे पास रिसर्च टूल्स बहुत अच्छे हैं। वी हैव plenty of access to free research resources available worldwide. Universities keep published reports, country publications, सब access में है आपके। और as a student तो आप almost हर जगह से वो free ले सकते हैं। खुद भी लोगों से बात कर सकते हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोगों से एक मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं, अनलाइक अस हु यूज्ड टू हैव टू राइट लेटर्स फॉर एग्जांपल। बच्चे वो करते हैं जो वो बड़ों को करता देखते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बच्चे बड़ों को अभी बगैर वेरीफाई किए व्हाट्सएप के मैसेज फॉरवर्ड करते देखते हैं। बच्चे बड़ों को इंफॉर्मेशन पॉलिटिकल या न्यूज रिलेटेड बगैर वेरीफाई किए शेयर करते देखते हैं। बच्चे बड़ों को सुस्ती में देखते हैं रिसर्च करने में, चाहे वो उनके असातिज़ा हो, चाहे उनके वालिदैन हो, बड़े बहन भाई हो, कंपनी के बॉसेस हो। वी आर ऑल कल्प्रिट्स इन दिस, क्योंकि हमारी जनरेशन ने, और हमसे बाद वाली 10 साल के बाद की जनरेशन भी, और उससे 10 साल के बाद की 20 साल से 40 साल 45 साल की उम्र के तमाम लोग, क्योंकि वो सही तरह इस वक्त रिसर्च में एम्प्लॉय नहीं कर रहे अपने दिमाग को और अपनी एबिलिटी को, अपने इंटेलिजेंस को, तो बच्चे भी उसको नहीं कर रहे। मैं ये बात मुझे बहुत शुरू में मेरे मरहूम वालिद ने कही थी कि तुम्हारे बच्चे वो नहीं करेंगे जो तुम कहोगे, वो करेंगे जो तुम्हें करता देखेंगे। तो तुम चाहते हो वो सच बोले तो उनके सामने सच बोलो हमेशा। तुम चाहते हो कि वो बादब रहे तो उनके सामने बादब रहो, because they will do as they see you do. So एक वजह तो ये है कि बच्चों के पास रोल मॉडल्स बहुत बुरे हैं, ठीक है, हम उसमें वी आर टू ब्लेम। दूसरी वजह ये है कि बच्चे दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफरेंट टाइम इन टर्म्स ऑफ सोशियोलॉजिकल चेंजेस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। हम आमतौर पे कहते थे कि सबसे कम अटेंशन स्पैन लिविंग थिंग्स में गोल्ड फिश का होता है। हर 8 सेकंड में उसका अटेंशन स्पैन रीसेट हो जाता था। इस वक्त there was research a couple of years ago, प्री कोविड टाइम की रिसर्च है, 2018 की मेरे में यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस की रिसर्च है, जिसमें उन्होंने तकरीबन 2 लाख अमेरिकन 8 से 18 साल के बच्चों के ऊपर रिसर्च की, और उन्हें ये पता चला कि एवरेज अटेंशन स्पैन 7.5 सेकंड आ चुका था। मतलब they tamed it, the goldfish generation। आजकल बच्चे कर्टसी टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स की, लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स की, इनकी वजह से इतने फ्रीक्वेंटली अब
इंटरप्ट होते हैं कि उनके अटेंशन स्पैन इतनी देर रहती ही नहीं है कि वो किसी चीज को थॉरोली पढ़ के ओपिनियन फॉर्म करें. इनफैक्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जब मैं एंगेज करता हूँ बच्चों के साथ, स्पेशली जो रैली कर रहे होते हैं किसी एक कॉन्सेप्ट पे या किसी एक सोशल मूवमेंट पे, उनसे दूसरे से तीसरे सवाल में पता चल जाता है कि उन्होंने कभी उस मूवमेंट के बारे में पढ़ा भी नहीं. They were just doing it because everyone was doing it. It's more like a trend that goes on now. हम सारे के सारे ट्रेंड फॉलोअर्स हो गए, ट्रेंड सेटर्स से ज्यादा. अभी कुछ अर्सा पहले हम आई वाज टॉकिंग टू टू ऑफ माय स्टूडेंट्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट, जो अभी आपने बात की, ब्लैक लाइव्स मैटर एंड एवरी लाइफ मैटर. रिसर्च नहीं किया, ये देखा नहीं कि व्हाट वाज द होल सिनेरियो बिहाइंड दैट थिंग, और हम उसके पीछे चल पड़ते हैं. और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि चिल्ड्रन do as they see us do. अगर मैं सारा दिन टीवी पे बैठूंगी तो I can't expect my children not to do the same. अगर मैं खुद पढ़ूंगी नहीं, I can't expect my children to read, understand till I read. अब प्रॉब्लम यहाँ पर मैं ये आ रही है कि अडल्ट्स को तो बदलना बड़ा मुश्किल है. अब एक बुजुर्ग खातून लाइक मी, वो तो नहीं बदलेंगी ना, तो जो हैबिट है वो हैबिट है. तो ये बच्चे को, लेकिन टाइम इतना तेजी से आगे बढ़ा है कि आई फील scared of looking at my students. अभी हम 2-4 दिन पहले I was talking to Miraj and my other associate Mustafa, और बच्चे हमसे बात करते हैं कि यार इस यूनिवर्सिटी जाएं या इस यूनिवर्सिटी जाएं. यूनिवर्सिटी की डेडलाइन आ गई है, पेपर्स देने की, फी पे करने की. बच्चा अभी इसी डिलेमा में है कि वो एक पर्टिकुलर फील्ड में जाए या ना जाए. सो दीज आर थिंग्स. आई एम सॉरी, शुरू में आपने कहा था आप डाइग्रेस करते हैं, मैं भी डाइग्रेस करती हूँ. इट हैज नथिंग टू डू विद मार्केटिंग, बट आई थिंक एवरीथिंग इज मार्केटिंग. माय क्वेश्चन रिमेन्स, यू बीइंग यू एंगेजिंग विद द यंग अडल्ट्स, कि वो टाइम जहां बच्चे को डिसाइड करना होता है कि द फील्ड दैट आई वुड लाइक टू टेक. अगर मैं अपने जमाने की बात करूँ, हमारे पास बड़े थोड़े से फील्ड्स होते थे. या टीचर बन जाओ, या डॉक्टर बन जाओ, या खवातीन के लिए इंजीनियर बनना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं समझा जाता था, तो टीचर और डॉक्टर के बीच में हम खेला करते थे. अब इट्स अ डाइवर्स थिंग, येट द चिल्ड्रन आर कंफ्यूज्ड. एक एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग में ये भी होना चाहिए उमेर के बच्चे को हम समझा सकें. हम काउंसलिंग करते हैं, लेकिन किस तरह से समझाएं कि बेटा, for you to decide what you want to do is imperative. क्या हमें ये उसको किसी ऐसे टाइम पे बता देना चाहिए जब वो छोटा हो, जैसे वो ओ लेवल में हो और ए में आए, ताकि वो अपने सब्जेक्ट उसी हिसाब से चूज कर ले. साइंसेस ले ली, बायोलॉजी पढ़ ली, केमिस्ट्री पढ़ ली, फिजिक्स पढ़ ली, और उसके बाद फैसला कर लिया कि नहीं नहीं, मुझे तो बीबीए करना था. तो भाई बीबीए करना था, जिंदगी को आसान रखना चाहिए. ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है. हो सकता है कि ये पर्सपेक्टिव हर शख्स ना करता हो. What is your take on that? So there are multiple very interesting concepts in what we just discussed. जो आप कह रही थी अभी, मैं अपनी अदना सी कोशिश करूंगा उनको. I'll try and break them apart and then put them together. First up, बच्चों को हम इन तमाम कमजोरियों के बावजूद रिसर्च की तरफ कैसे ला सकते हैं? इंसेंटिवाइज करके. क्या इंसेंटिवाइज करें? मेरी गलती पकड़ो, मैं उस्ताद हूं तुम्हारा, मेरी गलती पकड़ो, मुझे प्रूफ करो मैं गलत हूं, तुम्हें इतने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे. Incentivize them and see the reaction. That's what I've been doing for the last 12 years or so. जब सबसे मैं पढ़ा रहा हूँ independently. उससे पहले मैंने काफी अरसे, मैं एजुकेशन से मैं इन सम कैपेसिटी हमेशा मुंसलिक रहा हूँ. मैं अपने ही उस्तादों को एज अ टीचिंग असिस्टेंट असिस्ट करता रहा, बीबीए बीएस के दौरान भी और एमबीए के दौरान भी, और उसके बाद भी मैं पढ़ता भी रहा. 2012 तक मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की मास्टर क्लास में रजिस्टर्ड था यूनिवर्सिटी ऑफ सैन डिएगो के साथ, जो मैंने 13 में एंड में उसका एग्जाम देके उसे खत्म किया. ये एमएस इक्विवेलेंट एक प्रोग्राम था. जब तक मैं पढ़ता रहा और जब तक मैं पढ़ाता रहा, मैंने हमेशा स्टूडेंट्स को इंसेंटिवाइज किया और अपने कॉलीग्स को इंसेंटिवाइज किया कि प्रूव मी रॉन्ग एंड आई विल पे यू बैक. अब पे यू बैक इन द फॉर्म ऑफ मार्क्स, पे यू बैक इन द फॉर्म ऑफ applause and pay you back in the form of sharing some valuable information with you. अच्छा, ये करने के लिए ना अपनी ईगो उठा के साइड में रखनी पड़ती है, अपनी वल्नरेबिलिटीज शो करनी पड़ती है. ग्राउंड रूल क्लास में ये एस्टैब्लिश करना पड़ता है कि मैं और मेरा सर्कल ऑफ नॉलेज चाहे कितना ही बड़ा हो तुमसे, हो सकता है उसमें कोई एक दो चीजें ऐसी हो जो तुम्हारे सर्कल ऑफ नॉलेज में है, मेरे में नहीं है. तो मे बी यू नो मोर देन आई डू. सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी नीड टू डेवलप दैट इंटीमेट कॉन्टैक्ट विद द स्टूडेंट. यार, you can be right and I can be wrong and I am willing to accept my mistake. That changes the equation halfway.
That is one. Incentivize them and learn to accept your mistakes. The second aspect of your question was कि at what stage in life बच्चे को ये बता देना चाहिए या ये उसके साथ डिस्कशन करना चाहिए कि तुमने आगे क्या करना है. अच्छा, अब मैं जो कहने लगा हूँ शायद it might not be very popular as far as the business of education is concerned. क्योंकि मेरे ज़हन में हमेशा ये सवाल रहा है कि हमने क्यों ये कन्फाइन कर लिया अपने आप को कि 16 साल तक पढ़ना है, फिर उसके दौरान ही सब कुछ करना है और बनना है, और उसी के अंदर अपनी जो भी गलती कर ली, गलत भी बना लिया, गलत भी सोच लिया, तो उसी डायरेक्शन में चलते रहे. ये मैं 3 इडियट्स वाली बात नहीं कर रहा हूँ अभी कि वो उसको लेके बच्चे आजकल आधा तीतर आधा बटेर बन गए, ना वो ये करते हैं ना वो करते हैं. मैं बात ये कर रहा हूँ कि हम नॉलेज गेनिंग को फॉर द सेक ऑफ नॉलेज गेनिंग जब तक नहीं करेंगे, इल्म हासिल करने के लिए इल्म हासिल नहीं करेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं होगा. मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ आपको. आई थिंक हमारे तमाम ऑडियंस ने स्टीव जॉब्स का नाम सुना हुआ होगा. बड़ा बड़ा जबरदस्त थिंकर था अपने जमाने का. भाई क्या बात है उस बंदे की. स्टीव के सक्सेस का एक मेजर एस्पेक्ट उसका डिसकंटेंट विद एजुकेशनल सिस्टम था. तो जब स्टीव प्रोग्रामिंग पढ़ रहा था, अपने उस्तादों से कुछ बोर होके और उनकी गलती ना मानने के रवैये से तंग आके वो इधर उधर उसी यूनिवर्सिटी में और क्लासें ढूंढता फिर रहा था. उसे एक टाइपोग्राफी की क्लास मिली, आर्ट की, टाइपोग्राफी की, जिसमें मुख्तलिफ फॉन्ट्स को बनाया जाता है, हाथ से लिखा जाता है, कैलीग्राफी की जाती है, वगैरह वगैरह. वो उस क्लास में जाके बैठना शुरू किया. उसका उस्ताद उसे अच्छा लगा, उसकी बातें मजे की लगी. डिसकनेक्टेड टू हिज फील्ड. उस वक्त उसे कुछ नहीं पता था कि ये क्लास जो मैं ले रहा हूं मुझे जिंदगी में कभी काम भी आएगी, बल्कि उसे लगता था वो अपना वक्त जाया कर रहा है. कुछ बरस बाद एप्पल कंप्यूटर्स की टीम बैठी, पहला कंप्यूटर फॉन्ट बनाने की कोशिश कर रही थी, और उस टीम ऑफ इंजीनियर्स में कोई एक शख्स भी कोड क्रैक नहीं कर पा रहा था, बट स्टीव जॉब्स ने कर लिया था. और वो इसलिए कर पाया था कि उसने टाइपोग्राफी पढ़ी हुई थी. उसे कुछ चीजें ऐसी पता थी टाइपोग्राफी के बारे में जो इलेक्ट्रॉनिक फॉन्ट क्रिएट करने में, कोड लिखने में उसकी मदद कर गई, कोड लिखवाने में उसकी मदद कर गई. The only reason he was able to create the first computer font is because he had studied something completely irrelevant to his core area of studies. तो बच्चों को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ही देना चाहिए कि while there is an opportunity cost and an actual cost, यूनिवर्सिटियों की फीसें भरनी पड़ती हैं, टाइम जो आपकी सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है वो लग जाता है. They should be given the confidence के if you feel like doing this, give it your 100%. But if you change your mind even midway, you're open to discuss it. ये नहीं कि आप उनको बिल्कुल encourage ना करें to follow through with their decisions, लेकिन उनको ये opportunity मिलनी चाहिए कि अगर उन्हें लगता है कि this is not meant for them, but they've been excited by something else, they should be able to do this. So essentially, कोई भी वक्त वो वक्त नहीं है जिसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपने इस फील्ड में जाना है. मेरा बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और विद इन दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्टडी से रिलेटेड था. मैं कैसे मार्केटिंग तक पहुंचा, क्यों पहुंचा, अपनी मास्टर्स की डिग्री मार्केटिंग में क्यों परसू की, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में क्यों नहीं परसू की, और उसके बाद मार्केटिंग से आगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को अपना कोर क्यों बनाया और उसमें क्यों पढ़ना शुरू किया. तो लर्निंग इज अ परपेचुअल प्रोसेस, इट नेवर एंड्स. वी शुड नॉट स्टॉप. द बेस्ट learners, the best thinkers are connectors. They're able to connect what they learn from one vertical to another vertical. तो बच्चों को थोड़ा सा सुकून होने दें. साथ साथ जो स्किल डेवलपमेंट है वो स्किल डेवलपमेंट कहलाती है, वो स्किल क्रिएशन नहीं कहलाती. मतलब वो स्किल था थोड़ा बहुत पहले से, उसको डेवलप कर रहे हैं ना. तो अगर एक बच्चा स्किल्ड है पब्लिक स्पीकिंग में, तो उससे एसोसिएटेड अच्छे करियर्स में उसको एनकरेज करें, वो खुद रिसर्च करे. उससे एसोसिएटेड अच्छे करियर्स बहुत सारे हैं. एजुकेशन भी उनमें से करियर है, एंड एजुकेशन इज अ वेरी वेल पेइंग करियर, अनलाइक आवर पास्ट जब एजुकेशन वाज अ प्रेस्टीज करियर बट डिड नॉट पे वेरी वेल. सिमिलरली business management is a very good career for people good with interpersonal skills, so on and so forth. लेकिन वो करना क्या चाहते हैं और वो कर क्या रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हमें उनको वक्त और रूम या कुशन देना जरूरी है. स्पेशली वो थोड़ी सी जिनको privilege दे सकते इंडिपेंडेंस हैं. भी देना जरूरी है.
जरूरी है। मैं कह रहा हूँ ना कि आप एक डिपेंडेंसी। सेफ्टी नेट के तौर पे पीछे मौजूद है ना। हाँ, जिन बच्चों के पास वो सेफ्टी नेट नहीं है, मैंने फॉर एग्जांपल रिगार्डलेस ऑफ माय फाइनेंशियल सिचुएशन, मैंने स्कॉलरशिप पे पढ़ा, बैचलर्स में भी मास्टर्स में भी। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी स्कॉलरशिप लेने की, बहुत से मेरे आसपास के लोगों के पास नहीं थी, वो स्कॉलरशिप नहीं ले पाए, वो आगे पढ़ भी ना पाए उस हिसाब से। मेरे पास ये भी अपॉर्चुनिटी थी, आई वाज प्रिविलेज इनफ कि मेरे वालिद खड़े हुए थे मेरे पीछे, कहते थे कि तुम गिरोगे तो मैं संभाल लूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बहुत आगे हैं इस वक्त, और उनके पास वो कुशन नहीं था। उन्होंने वो रिस्क लिए, कमिटमेंट के साथ उन्हें पूरा किया, रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे हैड अ बैकअप और नॉट। सो हर एक की लाइफ स्टेज और रियलिटीज फर्क होती है, लेकिन योर कमिटमेंट एंड योर फॉलो थ्रू विल नेवर लेट यू डाउन। आप कुछ ना कुछ उससे अच्छा निकाल के आगे आएंगे। हाफ हार्टेड लेकिन नहीं करते। जैसे बड़े बूढ़े कहते थे, मेंगनियों भरा दूध देना, एंड आई लीव इट एट दैट। जिन बच्चों को नहीं पता कि मेंगनियों भरा दूध देने का मतलब क्या है, वो गूगल करें और समझ लें। लेट्स नॉट रूइन द कॉन्वर्सेशन। Let's not ruin the conversation. I hope they will Google. I hope they will understand that. Very well said, Umair. The cushion that is there. जरूरी नहीं होता कि cushion हमेशा माँ बाप की शक्ल में, वो cushion teachers की शक्ल में भी होता है, cushions आपके mentors की शक्ल में भी होता है. You जी। just need to let the child know कि risk ले लो. अगर अच्छा लगता है go ahead. नहीं अच्छा लगता digress करने में कोई हर्ज नहीं है. Coming back to our original topic, marketing, a hype or the need of every business, we have established that it's not a hype. We have been marketing since time immemorial. हम सब market करते रहे, हम सब अपने आप को market करते हैं अपने तरीके से, अपने बात करने के तरीके से. हर बंदे का अपना एक तरीका है. Conversation को, आज के session को end करने से पहले, I would like you to actually tell the audience के what actually would be the right path. अगर उन्हें लगता है, अगर उनका एक innate decision है कि मुझे मार्केटिंग अच्छी लगती है, I have a lot of students at Reeds जो बहुत अच्छे से अपने businesses को मार्केट करते हैं, अपने आइडियाज को मार्केट करते हैं. हमारी एक पूरी दीवार बनी हुई है जो हमारे बच्चों ने अपने आप को मार्केट किया, बात की, and they were able to get the go ahead about that. How do they go about it? How do they talk about this and get it done with? आसान नहीं है. Very honestly, as an adult, I know हम बड़े रिजिड हो जाते हैं. ऐसे नहीं करना, नहीं ये गलत है, नहीं ये नहीं करना. जरूरत है कि हम अपने बच्चों को टाइम दें, स्पेस दें. लेकिन अडल्ट्स के लिए क्या मशवरा होगा कि हम क्या करें एज अडल्ट्स कि इन बच्चों को इनकी जिंदगी जीने दीजिए ना. देखिए, एज अडल्ट्स हमारी सिचुएशन बड़ी खराब है अभी, क्योंकि अगर हम सोचें कि जो बच्चे अभी ग्रेड 2 ग्रेड 3 में पढ़ रहे हैं, वो बड़े होके क्या बनेंगे, तो हमारे पास जवाब नहीं है. हमें पता ही नहीं कि टेक्नोलॉजी कैसी होगी, दुनिया कैसी दिखती होगी उस वक्त. इट वाज वेरी इजी टू प्रिडिक्ट कि दुनिया कैसी होगी 1950 में, कि 2000 में दुनिया कैसी होगी, 1975 में, कि 2020 में दुनिया कैसी होगी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू थिंक नाउ, बिकॉज द रेट ऑफ चेंज, जितनी स्पीड हमने अटेन की, मूवमेंट स्पीड की बात कर रहा हूँ, पिछले 50 साल में उतनी पिछली 2000 साल में अटेन नहीं की. तो जिस स्पीड, चेंज हमेशा होती थी, चेंज वाज ऑलवेज देयर, लेकिन जिस स्पीड से अब चेंज हो रहा है वो बहुत खतरनाक है. सो इट्स बोथ द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज, वेलोसिटी जिसे कहते हैं. हमें थोड़ा तवक्कुल करने की जरूरत है. As long as we have been able to inculcate a good basic culture and ethical practice of going about life in the person that we think is our student, जिसके हम mentor हैं या हमारे बच्चे for that matter, honesty, integrity, compassion, अगर हमने ये कर दिया है तो hopefully everything else will fall in place. Let's stop stigmatizing failure. Let's celebrate failures. वो कौन कौन फेल करता है? जो ट्राई करता है वो फेल करता है. लेकिन फेलियर में और क्विटिंग में थोड़ा सा फर्क है. ठीक है, क्विट आप तब करते हैं जब आप फिनिश लाइन तक नहीं जाते. आप फेलियर तब है जब आपने फिनिश लाइन क्रॉस की लेकिन जीते नहीं. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. आप पाँव में दर्द हो गया था, मोच आ गई थी, भागते रहना है, वहां तक पहुंचना है, चाहे लेट पहुंचे. ये जो पार्शियल कमिटमेंट वाला मसला है, इसमें हमें जरूरत है बच्चों के साथ बैठ के उसको ब्रेक अपार्ट करें, उनको समझाएं कि कमिटमेंट क्यों जरूरी है जिंदगी में, चाहे जो भी हो, चाहे रिलेशनशिप्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब्स हो, चाहे एक
पेट के साथ ही आपका रिश्ता हो, फॉर एग्जाम्पल एक बिल्ली या कुत्ता जो आपने पाल रखा है, if you're not committed and you're not following through, the relationship will fall apart and you'll get hurt and the other person will get hurt. ये समझाना मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है इस वक्त. बाकी सब चीजें बच्चों को ये एहसास दिलाना कि वो कितने प्रिविलेज्ड हैं doesn't work. हमें नहीं अंदाजा था हम कितने प्रिविलेज्ड हैं जब हम उस एज में थे. बच्चों को ये कहना कि they should know what they should be doing, हमें नहीं पता हमें क्या करना चाहिए आगे. We should stop pretending like we have all the answers. Lastly, breathe. We cannot be perfect as parents, as mentors, as teachers. We can only put our hand on our heart and feel that we are doing our best. Inna ma malu bin niyat. अपनी नियत हमारी सही है, हमें नींद आ जाएगी. when नियत सही है, we know in the best of our ability हम उन्हें सही decision के लिए guide करेंगे, हम उन्हें सही coach करेंगे, सही mentor करेंगे, उनके साथ ज्यादती नहीं करेंगे. And with that, we'll be able to perhaps show them a glimpse of what they can become, a fraction of the greatness they can achieve. I today am a product of every teacher, every mentor, every classmate, every class senior who ever felt like they need to share something with me or took out a time to have a conversation with me. I'm a proud product of all of those, including obviously the most dominant part of me would be my parents and my own siblings, but equally my teachers. तो आज मैं पीछे देख के बहुत सारे अपने बुरे उस्तादों को भी याद कराता हूँ और याद करता हूँ कि हाँ यार, उस वक्त जो बुरा लगता था वो भी, उसमें भी कुछ वैल्यू थी, और कुछ लोग वाकई बुरे थे लेकिन उसने भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाया. उस एक्सपीरियंस भी से भी मेरे अंदर कुछ ना कुछ अच्छी तब्दीली आई. So the choice is always yours as both a mentor and a student. We can each other, all of us, you and I can show the door to these kids. लेकिन चलना उन्होंने खुद है, दरवाजा पकड़ना खुद है, खोलना खुद है, जाना खुद है. तो जाने दें उन्हें, let them be. जाने दें, गिरने दें, गिरते हैं तो संभाल लें, उठा लें, गिरते हैं क्या सवारी मैदाने जंग में. बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल. वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले. उमर, on this note जो आपने कहा ना, let's celebrate their failures as well. क्योंकि बाज दफा फेलियर से जो आप सीखते हैं वो सक्सेस से नहीं सीखते. सक्सेस वो ग्रांटेड ले लेते हैं, फेलियर्स आपको आगे लेके चलती है. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ये मार्केटिंग के भी लिए, मैं मार्केटिंग मेजर भी नहीं हूँ, एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि जब हम किसी चीज को मार्केट करते हैं तो हम उसकी जब कॉन्स देख रहे होते हैं तो वो कॉन्स ही हमें टुवर्ड्स द प्रोज ले जाते हैं कि ये गड़बड़ है ना तो ये फायदा भी है. और यही चीज एज एन अडल्ट मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को ये समझाएं कि बेटा हम हैं, ट्राई जरूर कर लो. अगर तुम्हें लगता है कि ये ट्राई करना तुम्हारा पैशन है, हाँ, उन्हें ये समझाना भी जरूरी है कि पैरामीटर्स क्या है, आपकी डिसएम्बार्कमेंट्स क्या है, आपकी लिमिट्स क्या है. सो we need to be as adults more secure. We need to be as adults somehow more less controlling and more liberating. giving. More liberating. उनको थोड़ी आजादी, मुझे लगता है आजादी देना बहुत जरूरी है. हम हर वक्त पकड़ लेते हैं कि नहीं. मैं कथा कलामी माफ, मैं एक चीज जरूर यहाँ कहना चाहूंगा. हमारी जनरेशन एक लफ्ज में हिंदी का इस्तेमाल करूंगा, भाषण. एक भाषण सुन के बड़ी हुई थी कि जी पैशन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपको पैशनेट होना चाहिए जो आप करने जा रहे हैं. मेरे जितने भी आर्टिस्ट दोस्त और अहबाब हैं उनके बिहाफ पे और बहुत सारे और ऐसे लोगों के बिहाफ पे जो पैशनेट थे, फॉर एग्जांपल किसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनके बिहाफ पे मैं आप तक एक मैसेज पहुंचा दूं कि अपने पैशन से अपनी ब्रेड अर्न करने की कोशिश ना कीजिएगा, बल्कि कोई अच्छा नया डिमेंशन देखिएगा जिसके अंदर आप एक स्टेबल अर्निंग और एक स्टेबल करियर बना सकें जो आपको इतना वक्त और इतना पैसा दे जाए कि आप अपना पैशन परस्यू कर लें. बिकॉज आपको अपने पैशन से नफरत होने लगेगी अगर वो पैशन आप पैसों के लिए करने लगेंगे. देयर इज नो ट्रेड ऑफ पैशन फॉर ग्लोरी. दोनों में से एक चीज होगी. ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है. इस बात को ध्यान में रखिएगा. और ये पैशन के भाषण, अगेन लफ्ज मैंने जानबूझ के हिंदी का इस्तेमाल किया, इसमें मत पढ़िएगा. सोचिएगा कि प्रैक्टिकली, लॉजिकली जिंदगी में बैलेंस कैसे लेके चलना है. काम 24 घंटे नहीं, आराम 24 घंटे नहीं. ये सोच के करियर चॉइसेस लीजिएगा.
Thank you so much, Umair. That was a brilliant, brilliant message. पैशन आपका ब्रेड अर्नर नहीं हो सकता. अगर पैशन को ब्रेड अर्नर बना लिया तो वो पैशन नहीं रह जाएगा, वो फिर आपके लिए एक मुश्किल बन जाएगा. विद दिस, Umair, thank you so much for being with us today for such an interesting conversation. Thank you audience for being with us. जो आज हमारे साथ थे उनका शुक्रिया, वो जो इस सेशन को बाद में देखेंगे उनका भी शुक्रिया. अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं आप इस थ्रेड पे जरूर क्वेश्चंस पूछिए. We'll try to answer all your questions. With this we come to the end of this session. हम अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे, फिर एक डिफरेंट टॉपिक, एक डिफरेंट मेहमान के साथ. Signing off from Reed's School and College platform. I'm Naila Abdi. See you next week. Thank you so much, Umair, for being with us. Allah Hafiz. Thank you, Naila. Allah Hafiz.